Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Learning Pharmacy with Dr. Radhika Bhaskar. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. In this presentation, we will be discussing about microencapsulation process. Starting the presentation with the definition of microencapsulation process. It is a process by which the individual particle or droplet of solid or liquid material, that is the core material or the active ingredient, are surrounded or coated with a continuous film of polymeric material to produce a capsule in the micrometer to millimeter size range. It is known as microcapsule. ये देखिए, ये आपका कोर मटेरियल है या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर हमने हमारे पॉलीमेरिक मटेरियल की कोटिंग कर दी है, जो कि एक उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस फिल्म फॉर्म करता है. Now, there are certain application of microencapsulation process in which the first one is the application of taste masking. This process help in taste marking of the bitter drug, especially in case of chewable tablets. Second, it help in increasing the gastrotolerability of the drug. Now, there are certain drug or the active ingredient which degrades at stomach pH. So, these ingredients can be coated with such polymers which do not show their release in the stomach area. And once they reaches the intestinal fluid, these polymer degrades and core material shows its release. Third application, it help in core stabilization. Now, in certain cases where our core material or the active ingredient is sensitive to heat or moisture, in that case, if we cover these sensitive material with the polymers, तो उस केस में क्या होगा, आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर आपकी हीट और टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. Next, it help in controlling the drug release. This method help in sustaining or prolonging the action of the medicament. जैसे अगर हम अपनी ड्रग के ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर हमारे पॉलीमर की नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म करेंगे या फिर ड्रग पॉलीमर की डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारी ड्रग का जो रिलीज है वो कंट्रोल्ड रहेगा, सस्टेन्ड और प्रोलॉन्ग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी रिक्वायरमेंट है. Last application, it help in avoiding the incompatibility. Sometime in a single layer tablet, it contains chemically inactive ingredients. In that case, we can separate such reactive ingredient by placing some ingredient in the core tablet and some in the polymer coating. There are number of processes by which we can perform microencapsulation, in which the first one is the air suspension process. This process consists of dispersion of solid particulate core material in the supporting air stream, followed by the spray coating of the air suspended particles. This is the apparatus which is used in the air suspension process. This apparatus is called as Worcester air suspension apparatus. This apparatus consists of a coating chamber. See, this is a coating chamber in which the particles or the core material are suspended in the upward moving air stream. दिस इज द एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट जो आपके एयर को आपके कोटिंग चैम्बर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है. दिस इज द स्प्रे नोजल जहां से आपका पॉलीमेरिक कोटिंग मटेरियल जो है वो आपके कोटिंग चैम्बर में स्प्रे किया जाता है. हमें कोटिंग मटेरियल को तब तक स्प्रे करना है जब तक हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस ना आ जाए. देन ओनली वी कैन स्टॉप आवर एनकैप्सुलेशन प्रोसेस. अब ये जो हम एयर सप्लाई कर रहे हैं हमारे कोटिंग चैम्बर के अंदर, दिस सर्व्स टू पर्पसेस, इन विच द फर्स्ट वन इज इट कीप्स द पार्टिकल्स इन द सस्पेंडेड फॉर्म. सेकेंडली, इट हेल्प इन ड्राइंग द एनकैप्सुलेटेड पार्टिकल्स ऑल्सो. Certain processing variables for air suspension methods are: first one, we need to keep in mind the density, surface area, melting point, solubility, friability, etc. of the core material. कोटिंग मटेरियल की कंसंट्रेशन कैसी है और उसका एप्लीकेशन रेट कितना है. वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड फ्लूइडाइज द कोर मटेरियल. अमाउंट ऑफ कोटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, किस लिए, ताकि पता चले हमें जितनी कोटिंग थिकनेस चाहिए उतना हमें कोटिंग मटेरियल भी रिक्वायर्ड रहेगा. इनलेट एंड आउटलेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर. द सेकेंड मेथड ऑफ मैक्रोएनकैप्सुलेशन इज द conservation phase separation technique. This technique consists of 3 different steps, in which the first step is the formation of 3 immiscible chemical phases. ये 3 immiscible chemical phases कौन कौन से होते हैं? First one is the liquid manufacturing vehicle phase,
then core material phase and the coating material phase। तो ये तीनों मिलके आपके 3 immiscible chemical phase बनाते हैं। अब इस स्टेज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट हमारी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फेज 1 अचीव करना है। फेज 1 क्या है? जिसमें हमारा जो कोटिंग मटेरियल है दैट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन दी व्हीकल फेज, दैट इज दी सॉल्वेंट। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर हमारा कोटिंग मटेरियल जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है एंड दीज टू फॉर्म्स अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। फिर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉन्जर्वेशन फेज सेपरेशन हमें हमारे सॉल्वेंट में से हमारे कोटिंग मटेरियल को सेपरेट आउट करना है। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर चेंज, सॉल्ट एडिशन, नॉन सॉल्वेंट एडिशन, ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम हमारे कोटिंग मटेरियल को, पॉलीमर को हमारे सॉल्वेंट में से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसे हम कहेंगे 2 फेज सिस्टम। 2 फेज मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉरी पॉलीमर है, हमारे सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो गया है, 2 डिफरेंट फेजेस फॉर्म हुए हैं। अब इस स्टेज पे अगर हम हमारे कोर मटेरियल को भी ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक 3 इमिसिबल केमिकल फेज बन जाएगा। मतलब ये आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड है, दिस व्हाइट बैकग्राउंड इज योर सॉल्वेंट और दी व्हीकल फेज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया था बाय डिसॉल्विंग योर कोटिंग मटेरियल। दिस स्मॉल सर्कल्स आर योर कोटिंग मटेरियल और द पॉलीमर मटेरियल। ठीक, अब हमने हमारे सॉल्वेंट में से हमारे पॉलीमर को सेपरेट आउट किया एंड फाइनली जब हमने उस स्टेज को अचीव किया तो हमने उसके अंदर कोर मटेरियल, ड्रग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को भी हमने ऐड कर दिया। तो ये तीनों ने मिलके बनाया हमारा, इस समय तीनों के तीनों वहां पे सेपरेटेड है। ये जो आपकी ड्रग है ये इमिसिबल फॉर्म में है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। तो इन तीनों ने मिलके बनाया हमारा 3 इमिसिबल केमिकल फेज। सेकेंड स्टेप होता है आपका डिपॉजिटिंग दी लिक्विड पॉलीमर कोटिंग अपॉन दी कोर मटेरियल। जब हमारा सॉल्वेंट में से हमारा पॉलीमर सेपरेट हो गया है तो वो क्या करेगा, वो जाके आपके कोर मटेरियल के ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा, एक शेल फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं हर आपके कोर के ऊपर आपके जो पॉलीमर मटेरियल है वो वहां पे डिपॉजिट हो गया है। लास्ट स्टेप इज द स्टेप ऑफ रिजिडाइजेशन ऑफ दिस कोटिंग। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी जो ये कोटिंग है वो आपकी वहां से रिमूव हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी हमारी कोटिंग लेयर फॉर्म हुई है, हमारा जो ये शेल फॉर्म हुआ है, इसको हमें सॉलिडिफाई करना है ताकि ये एनकैप्सुलेटेड मटेरियल जो है वो अपनी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करे, अपना एक्शन वही उसी फॉर्म में शो करे। ठीक है, there are various techniques involved in conservation phase separation method, in which the first one is the temperature change method, second incompatible polymer addition, third non-solvent addition, fourth salt addition and lastly polymer polymer interaction। इन सब टेक्निक्स के अंदर जो हमारा बेसिक प्रोसीजर फॉलो होता है, लेट्स स्टडी दैट। This is the basic procedure followed for conservation phase separation technique. In this, the first step is the formation of homogeneous solution. This homogeneous solution is of solvent and polymer X. अब इस homogeneous solution के अंदर हम second step में हमारे core material को add करते हैं। ये जो core material जो हमारा drug है, हमारा API है, ये एक dispersed form में रहता है because this is immiscible in this homogeneous solution. इस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारा पॉलीमर Y। जब हम इसके अंदर हमारा पॉलीमर Y ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर हमारा पॉलीमर X जो था वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। सी दी स्मॉल ऑरेंज कलर सर्कल्स आर दी प्रेसिपिटेट ऑफ पॉलीमर X। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, हमारा सॉल्वेंट भी अवेलेबल है, हमारा पॉलीमर, हमारा कोटिंग मटीरियल भी अवेलेबल है और लास्ट की API या ड्रग हमारी कोर मटीरियल भी अवेलेबल है। ठीक है, अब फाइनली जब हम यहाँ पर ये तीनों चीजें अवेलेबल है, अब ये पॉलीमर Y के एडिशन पर हमारा ये पॉलीमर X सेपरेट क्यों होने लगता है, क्योंकि जो पॉलीमर Y है उसकी एफिनिटी हमारे इस सॉल्वेंट के तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉलीमर X, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो अपनी आपको पॉलीमर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता जाएगा और वहां से पॉलीमर X को प्रेसिपिटेट आउट करता जाएगा।
ठीक है। अब जब हमारा पॉलीमर एक्स प्रेसिपिटेट हो गया है तो वो क्या करेगा, वो हमारे ड्रग हमारे कोर मटेरियल के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस फिल्म का फॉर्म करेगा, एक शेल फॉर्म करेगा, एंड दिस फाइनली विल गिव यू दी माइक्रो एनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट्स। ये पूरे प्रोसीजर के अंदर वी हैव टू कंटिन्यू दी स्टरिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर आपकी स्टरिंग कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी तो इट विल गिव यू लम्प्स, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें हमारी स्टरिंग को कॉन्टिन्यूस रखना होता है। ओके। The first technique under conservation phase separation method is the temperature change technique. In this technique, we have to consider a binary system which consists of a polymer and a solvent. Now let's understand this technique with the help of a graph. ये ग्राफ आपको क्या बताता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो हमारा पॉलीमर है वो हमारे सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होता जाता है, और अबव दिस फेज बाउंड्री, ये फेज बाउंड्री कौन सी है, बाउंड्री FEG, इस फेज बाउंड्री के ऊपर का जितना भी एरिया है दिस एरिया एग्जिस्ट एज अ सिंगल फेज और अ फेज ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। मतलब इस फेज में आपका जो पॉलीमर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है आपके सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही हम हमारे इस पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जो कि आपके सिंगल फेज सिस्टम में होमोजीनियस सॉल्यूशन के सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट से नीचे टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं थ्रू द लाइन AEB। ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एंड वी क्रॉस द बाउंड्री आफ्टर द पॉइंट E से क्रॉस करके जैसे ही हम इस बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं, वी एंटर इनटू अ सिस्टम ऑफ टू फेज सिस्टम में एंटर करते हैं। टू फेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो पॉलीमर है वो हमारे सॉल्वेंट में से सेपरेट आउट होने लगता है एंड इट स्टार्ट एग्जिस्टिंग एज अ इमिसिबल लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब इस फेज में, इस टू फेज सिस्टम में अगर हम हमारे इमिसिबल कोर मटेरियल को ऐड करते हैं तो क्या होगा, आपका जो ये इमिसिबल लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं आपके पॉलीमर की, ये जाके डिपॉजिट हो जाएंगी आपके कोर मटेरियल के सरफेस पे एंड इट विल फॉर्म अ शेल ओवर दी कोर मटेरियल, और यहाँ पे ये इनका एनकैप्सुलेशन हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे आपके माइक्रो कैप्सूल का रिजिडाइजेशन होता जाएगा, सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो डिपॉजिटेड लेयर थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। दिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन फॉर्म माइक्रो एनकैप्सूल्स यूजिंग अ टेक्निक ऑफ टेम्परेचर चेंज। The second technique of conservation phase separation method is the incompatible polymer addition. This technique utilizes the incompatibility of dissimilar polymers existing in a common solvent. Let's understand this method with the help of this ternary diagram. This diagram consists of a solvent and two different polymers, that is polymer Y and polymer X. Now ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट ए में हम लोग अपने पॉलीमर वाई को कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहे हैं हमारे सॉल्वेंट के अंदर। इसके अंदर हमारा पॉलीमर वाई जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करता है, एक सिंगल फेज फॉर्म करता है। एट दिस पॉइंट ए वी एड आर कोर मटेरियल इनटू द होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये जो कोर मटेरियल है ये हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर इमिसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक। अब आफ्टर दिस पॉइंट ए हम क्या करते हैं, हमारे पॉलीमर एक्स की एडिशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम पॉलीमर एक्स का एडिशन स्टार्ट करेंगे, हमारा पॉलीमर एक्स जो है उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द सॉल्वेंट इज मोर एज कंपेयर टू पॉलीमर वाई, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे पॉलीमर वाई को हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन में से सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है इन पूरी माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स के अंदर, स्पेशली कॉन्जर्वेशन फेज सेपरेशन की टेक्निक्स में हमें स्टरिंग को कॉन्टिन्यूअस रखना है ताकि हमारे प्रोसेस के अंदर लम्प फॉर्मेशन ना हो। तो जैसे ही हम पॉलीमर एक्स का एडिशन की पॉलीमर एक्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा पॉलीमर वाई जो है वहां से सेपरेट होने शुरू हो जाता है। जैसे ही हम इस फेज बाउंड्री को अचीव करते हैं और इस पॉइंट ई को क्रॉस करते हैं, एंटर द फेज बाउंड्री, तो क्या होगा, हम टू फेज सिस्टम में एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर एक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसने पॉलीमर वाई को हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन में से सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा पॉलीमर वाई भी वहां पे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस आपका जो कोर मटेरियल है, जो आपकी ड्रग है, वो भी वहां पे इमिसिबल फॉर्म में
सर्कुलेट कर रही है, तो हमारा जो पॉलीमर है वो क्या करेगा, आपके कोर मटेरियल के ऊपर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन हमारे पॉलीमर एक्स की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो डिपॉजिटेड लेयर है आपके कोर मटेरियल के ऊपर पॉलीमर वाई की, वो आपकी रिजिड होती जाएगी, सॉलिडिफाई होती जाएगी, एंड फाइनली वी गेट द माइक्रो एनकैप्सुलेटेड मटेरियल। Next technique is the addition of non-solvent. In this technique, the liquid that is non-solvent for a given polymer can be added to a solution of a polymer to induce phase separation. Let's understand this technique with the help of this ternary phase diagram. It consists of a solvent, a polymer or a coating material and a non-solvent. अब इसमें से क्या होगा कि हम पहले हमारे कोटिंग मटेरियल को हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और एक सिंगल फेज सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। पॉइंट ए में हम हमारे कोर ड्रग को हमारे इस होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं, जो कि हमारे इनमिसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट ए हम धीरे धीरे हमारे होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन सॉल्वेंट का एडिशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे हम नॉन सॉल्वेंट का एडिशन स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और हमारे नॉन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही हम इस फेज बाउंड्री को इस पॉइंट ई के बाद क्रॉस करते हैं और फेज बाउंड्री में एंटर करते हैं, वी एंटर इनटू टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम कैसे, जैसे जहां हमारे नॉन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे सॉल्वेंट में से हमारा जो पॉलीमर है वो सेपरेट आउट होने लगा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पॉलीमर है वो भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज हमारा जो कोर ड्रग है वो भी हमारी फ्री इमिसिबल फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो हमारा जो पॉलीमर है वो हमारे ड्रग के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करेगा, माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म करेगा। जैसे जैसे हमारे नॉन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो पॉलीमर की कोटिंग हुई है हमारे कोर ड्रग के ऊपर वो रिजिड होती जा रही है, सॉलिडिफाई होती जा रही है, एंड फाइनली वी गेट द माइक्रो एनकैप्सुलेटेड पार्टिकल्स which we separate, wash and dried in the vacuum. The next technique is the salt addition technique. This technique consists of a soluble inorganic salt which can be added to aqueous solution of certain soluble polymers to cause phase separation. Now we'll understand this technique with the help of this ternary diagram. This ternary diagram consists of three different material. The first one is the solvent, that is water, polymer, that is the coat material, and the salt. Okay, ये जो आपके पॉइंट्स है, तीनों आपके जो पॉइंट्स हैं, इन पे हमारी इन तीनों की कंसंट्रेशन 100% है। ठीक, अब ये जो हमारा कोर मटेरियल है वो हमारा विटामिन ए यानी कि ऑयल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये हमारा सिंगल फेज है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे कोट मटेरियल दैट इज पिग जेलेटिन को हमने वाटर में डिसॉल्व किया एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल फेज सिस्टम बनाया, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाया इसने। अब इस होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर हमने हमारे कोर मटेरियल को ऐड कर दिया। कोर मटेरियल मतलब हमारा ऑयली मटेरियल है विटामिन ए, तो हमारा लिक्विड फेज और हमारा ऑयल फेज दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक इमल्शन फॉर्म कर दिया। अब इमल्शन में क्या है, आपका विटामिन ए के ऑयल है जिसके ऊपर अब आपके वाटर मिसिबल फेज दैट इज योर पॉलीमर फेज ने, पिग जेलेटिन इन वाटर ने एक ऊपर एक कॉन्टिन्यूस फेज की लेयर फॉर्म कर दी है, लेयर फॉर्म करी है, बट इट इज नॉट गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर योर ऑयल फेज। ठीक, अब जैसे ही हम हमारे पॉइंट ए से, जो कि आपके सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, वहां से हम टुवर्ड दिस बाउंड्री, फेज बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं एंड वी क्रॉस दिस पॉइंट ई, तो हम टू फेज सिस्टम में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे इमल्शन के अंदर टू फेज सिस्टम कैसे आएगा, आफ्टर क्रॉसिंग दिस पॉइंट ई हमने क्या किया, हमने सॉल्ट का एडिशन स्टार्ट किया। देखिए ये जैसे जैसे एरो जा रहा है ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन अब बढ़ती जा रही है, पॉलीमर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्ट एडिशन होता जा रहा है। ठीक है, तो कैसे हुआ, जैसे हमने सॉल्ट ऐड किया तो हमारा जितना भी डिसॉल्व्ड पॉलीमर था
वो वहां से सेपरेट होना शुरू हुआ वाटर में से। क्यों? क्योंकि हमारे सॉल्ट की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स वाटर, सोडियम सल्फेट की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स वाटर इज मोर एज कंपेयर टू पिग जेलेटिन। तो उसने क्या किया, आपके पिग जेलेटिन के सॉल्यूशन में से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपका पिग जेलेटिन तो था वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा। अब जब वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा तो उसने क्या किया, वो उसने विटामिन ए के जो ड्रॉप्स थी उसके ऊपर जाके उसने वो डिपॉजिट हो गया और वहां पे उसने एक लेयर फॉर्म कर दी, एक शेल फॉर्म कर दिया। जैसे जैसे आप सॉल्ट एडिशन बढ़ाते जाएंगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका पॉलीमर सेपरेट होता जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी जो पॉलीमर की डिपोजिशन है आपके ऑयल पे वो बढ़ती जाएगी। अब फर्दर जैसे हम सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी डिपॉजिटेड लेयर जो है वो रिजिड होती जा रही है, सॉलिडिफाई होती जा रही है। And finally, we'll get our microencapsulated product, which is collected, washed and dried. The last technique of conservation phase separation method is the polymer-polymer interaction. In this, it consists of interaction of oppositely charged polyelectrolytes, which result in the formation of complex having reduced solubility and causes phase separation. Let's understand it with the help of a ternary phase diagram. In this ternary phase diagram, it consists of a solvent, that is water, and two oppositely charged polymers. Now let's understand this diagram. इसमें क्या है, ये जो आपके दोनों oppositely charged polymer हैं, इनको हम water में dissolve करते हैं and they all form a single phase or a homogeneous solution. अब इस स्टेज पे जहाँ ये होमोजीनियस सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें हम हमारे कोर मटेरियल, हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड कर देते हैं, जो कि आपके डिस्पर्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाउ अब जैसे ही हम हमारे पॉइंट ए पे हमारे पीएच को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जब हम पीएच चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पॉलीमर्स, ऑपोजिटली चार्ज पॉलीमर हमारे सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व थे, वो हमारे सॉल्वेंट में से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट एग्जिस्टिंग एज इन द प्लस एंड माइनस चार्जेस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कोर मटेरियल हमारे जो सॉल्यूशन में डिस्पर्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, वो हमारे जो ऑपोजिटली चार्ज पॉलीमर्स है वो उसके ऊपर जाके कोट फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम पीएच को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो पॉलीमर की लेयर है वो सॉलिडिफाई होती जाएगी और रिजिड होती जाएगी, ठीक। And ultimately we'll get our microencapsulated particles. Now, अभी तक जितने भी हमने डिफरेंट मेथड स्टडी करे हैं हमारे कंजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक में, दोज ऑल वर दी केमिकल मेथड्स, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमारे पॉलीमर को कोट कर रहे हैं हमारे कोर मटेरियल के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ मैकेनिकल प्रोसेस, दैट इज मल्टी ऑरिफाइड सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। इट इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है आपका मल्टी ऑरिफाइस। इसमें बहुत सारे ऑरिफिस रहेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी माइक्रो एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस कैरी आउट होगी। दिस इज द apparatus which we use for carrying out the microencapsulation by this technique. Now let's study in detail this apparatus. It consists of a rotating cylinder which is the main part of this machine. This is a sectional diagram of the apparatus, ठीक है। Now these are 2, 3 and 4 are the circumferential grooves which contain the coating material. From point 6 and 5 we enter our coating material into the apparatus. The coating material which is either molten or in the solution form. यहाँ से जब हमने हमारे कोटिंग मटेरियल को एंटर किया हमारे apparatus में, तो यहाँ से जब ये एक्सेस होता है तो इट ओवरफ्लोज एंड मेक अ लेयर ओवर द ग्रूव नंबर 3 लाइक दिस एंड अगेन इन दिस ग्रूव नंबर 4, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या है, ग्रूव नंबर 3 के ऊपर हमारी एक थिन लेयर फॉर्म होती है हमारे कोटिंग मटेरियल की एंड हेयर इज द प्रेजेंट अ ऑरिफिस, ठीक। नाउ नंबर 7, दिस इज अ रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क क्या है आपकी, जिसके ऊपर हम हमारा कोर मटेरियल सप्लाई करते हैं फ्रॉम दिस इनलेट। यहाँ से हमारा ड्रॉपलेट की फॉर्म में कोर मटेरियल सप्लाई होता है ओवर योर रोटेटिंग डिस्क। नाउ व्हेन दिस रोटेटिंग डिस्क रोटेट्स, तो विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं आपके कोर मटेरियल की, इट मूव्स अवे फ्रॉम द रोटेटिंग डिस्क लाइक दिस एंड पासिस थ्रू दिस ऑरिफिस। अब इस ऑरिफिस के ऊपर ऑलरेडी कोटिंग मटेरियल की एक लेयर है। जब आपका
जो कोर मटेरियल है यहाँ से पास करेगा तो इट विल गेट एनकैप्सुलेटेड बाय योर पॉलीमर कोटिंग मटेरियल. Now by this method we do the microencapsulation process by multi-orifice centrifugal process. Another technique of microencapsulation is the pan coating process. Now ये pan coating process जो है, this technique is same as we have already studied in the tablet coating process. अब वहाँ पे हमने टैबलेट की कोटिंग करी थी, यहाँ पे हमें हमारे कोर मटेरियल हमारे API को कोट करना है जो कि आपके पाउडर फॉर्म में है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा कोर मटेरियल है दैट शुड बी greater than 600 micron in size. This process is generally used for the formulation of control release beads. Now let's study this procedure with the help of the diagram. This is your coating pan जिसके अंदर हमने हमारा कोर मटेरियल को प्लेस किया है और साथ में यहाँ से हमने हमारे कोटिंग मटेरियल को स्प्रे किया है ओवर दी कोर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रे नोजल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि हमारा जो पार्टिकल्स जो कोर मटेरियल है दैट शुड बी मोर देन 600 माइक्रॉन्स, बट हमारा जो API रहेगा वो तो बहुत स्मॉल साइज का रहेगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोट दैट स्मॉल पार्टिकल विद द कोटिंग मटेरियल. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक नॉन पेराइल शुगर बीड्स. ये नॉन पेराइल शुगर बीड्स क्या करते हैं, दीज आर नॉन पेराइल मीन्स दे आर इनर्ट, उनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता. सेकेंडली दे आर शुगर बीड, तो उनके साथ टेस्ट का भी कोई इशू नहीं होगा. अब इसके ऊपर जो शुगर बीड्स हैं, सबसे पहले हम हमारे कोर मटेरियल की कोटिंग करेंगे. इसके ऊपर शुगर बीड्स के ऊपर हमने हमारे कोर मटेरियल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसकी हमने उनको हमारे शुगर बीड के ऊपर स्प्रे किया. तो शुगर बीड के ऊपर फर्स्ट कोटिंग हो गई हमारे कोर मटेरियल की. सेकेंडली जब हमारा कोर मटेरियल प्रॉपरली कोट हो जाता है तो देन वी स्प्रे आर कोटिंग मटेरियल विच इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट. ठीक, तो अब सबसे पहले था हमारा नॉन पेराइल बीड sugar bead, then a core material and then another layer of coating material. इसी तरीके से हम different layer फिर से form कर सकते हैं. another a layer of core material, then coating material, then core material, then coating material. जिसकी वजह से क्या होगा, हम हमारे जो रिलीज है हमारी ड्रग का, हमारे कोर का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद टाइम. ठीक, आफ्टर द कोटिंग we need to remove the excess solvent by passing the warm air over the coating material. एंड स्टिल अगर आपका कुछ सॉल्वेंट रह जाता है तो इन सम केसेस फाइनल सॉल्वेंट रिमूवल इज डन इन द ड्राइंग ओवन. नेक्स्ट टेक्निक ऑफ माइक्रोएनकैप्सुलेशन इज द स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग टेक्निक. फर्स्ट वील स्टडी स्प्रे ड्राइंग मेथड. दिस स्प्रे ड्राइंग मेथड कंसिस्ट ऑफ अ कोर मटेरियल व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन कोटिंग सॉल्यूशन. सी दिस इज द apparatus फॉर स्प्रे ड्राइंग मेथड. दिस इज योर फीड सस्पेंशन. सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ, हमने हमारे कोटिंग मटेरियल को एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जिसकी वजह से वो एक सोल्यूशन फॉर्म हो गया. उस सोल्यूशन में हमने हमारे कोर मटेरियल को डिस्पर्स कर दिया. ठीक, एंड नाउ फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस इनलेट फ्रॉम दिस नोजल स्प्रे नोजल हमने हमारे जो सस्पेंशन है उसको एटमाइज किया और स्प्रे किया. ठीक, अलॉन्ग विद दी योर फीड सस्पेंशन वी आर सप्लाइंग हॉट एयर ऑल्सो. तो ये हॉट एयर क्या करेगी, जितना भी सॉल्वेंट था आपका उसको ये हॉट एयर जो है वो रिमूव कर देगी और आपका जो कोटिंग मटेरियल था वो कोट हो जाएगा आपके कोर मटेरियल के ऊपर. एक जो दोनों मिलके एक माइक्रो एनकैप्सूल फॉर्म करेंगे. फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो ऊपर की कोटिंग लेयर थी वो उतनी ज्यादा सॉलिडिफाई होती जाएगी, रिजिड हो जाएगी. फर्दर जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस डाउन करेंगे तो वील गेट दी माइक्रो एनकैप्सूल एज इन द फॉर्म ऑफ powder. Next is the spray congealing method. Now in this method we are having a core material and molten coating material. यहाँ पे हमारा कोई भी coating solution नहीं है, we have a melted coating material. ये देखिए, ये हमारा हमने heat apply किया, हमने heat दिया हमारे coating material को जिसकी वजह से वो मेल्ट हो गया. जनरली जो हम कोटिंग मटेरियल हम यहाँ पे लेते हैं दोज आर वैक्सेस, फैटी एसिड्स और शुगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहती है, पर जैसे ही उसका टेम्परेचर हम लो डाउन करते हैं इट गेट मेल्ट. तो वो मेल्ट हो गई और उसके अंदर हमने हमारे कोर मटेरियल को डिसॉल्व कर दिया. एंड देन वी स्प्रे इट फ्रॉम दिस स्प्रे नोजल, उसको हमने एटमाइज किया. एटमाइज करने के साथ साथ हमने हमारे टेम्परेचर को लो डाउन करना स्टार्ट किया. जब हम टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेल्टेड मटेरियल है वो हमारे कोर मटेरियल के ऊपर एक शेल, एक लेयर फॉर्म करने लगेगा.
See, these outer layer is the layer of the coating material on your core material, और इसकी वजह से हमें हमारे माइक्रोन कैप्सूल्स मिलेंगे। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस डाउन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आउटर लेयर जो है कोटिंग मटेरियल की, वो सॉलिडिफाई होती जाएगी, रिजिड होती जाएगी। Another technique of microencapsulation is the solvent evaporation method. This method consists of a core material which is dissolved or dispersed in the coating polymer solution. See, this is a coating drug plus polymer in organic solvent. आपने पॉलीमर को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उसके अंदर हमने हमारे ड्रग को, कोर मटेरियल को डिस्पर्स कर दिया। यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन स्टार्ट रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग हमारी चलती रहेगी। अब जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है, दैट सॉल्वेंट इज एक्चुअली वॉलेटाइल इन नेचर। तो जब हम इस सॉल्वेंट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो फाइनली इट विल लीव बिहाइंड पॉलीमर एंड द कोर मटेरियल, द ड्रग। तो आपका जो पॉलीमर होगा वो आपकी ड्रग के ऊपर जाके कोट होने लगेगा। इट विल गेट श्रिंक एंड गेट कोटेड ओवर योर core material, your drug, and finally we get the encapsulated product. The last technique under microencapsulation process is the polymerization technique. In this, it forms protective microcapsule coating in situ. The reaction of monomeric unit located at the interface exists between a core material and a continuous phase. The polymerization reaction occur at liquid-liquid, liquid-gas or solid-gas interface. With this, we are end with our topic of discussion. Please don't forget to subscribe my channel and do share my videos. Thank you.